Hello and welcome back everyone. Today we are going to discuss about the Proteus, that is the family member of Enterobacteriaceae family. Okay, so the tribe Proteae contain three genera. First is Proteus, another one is Morchinella, third one is Providency. We will talk about the Proteus only. Okay, there are some common characteristics that are possessed by all three these genera. First is they are PPA positive. That means they species of these genera, tribe Protea genera, they all contain an enzyme, that is phenylalanine deaminase enzyme, that converts phenylalanine to phenylpyruvic acid, that is PPA. Okay, this thing is PPA, and all these species of these genera are PPA positive. Next thing is that they possess a fishy pungent odor, that is a फिश लाइक स्मेल. आपने देखा होगा बहुत सी जगहों से फ़िश की स्मेल आती है. ज़्यादातर जहाँ पे फ़िशेज़ वगैरह बेचते हैं वहाँ से एक अजीब सी स्मेल आती है. वैसी ही स्मेल हम जिस पेट्री प्लेट में हमने प्रोटीज की ग्रोथ करवाई है उस प्लेट में से भी सेम ऐसी स्मेल आती है. दैट इज़ ऑल्सो डायग्नोस्टिक फीचर फॉर प्रोटीज. नेक्स्ट इज they all are motile and they all are non-lactose fermenters. They are mostly present as a commensal in the human intestine and cause nosocomial infections like urinary tract infection, wound infection, etc. Now we will study about the Proteus only. So the Proteus, the first we will go through the morphology of Proteus. They are gram positive, as you can show the red color they are gram negative. The red color indicates that they are gram negative. Next thing is that they are non-sporing, non-capsulated. They are surrounded by the flagella. That means they contain peritragus flagella. Flagella is present, it means they contain H antigen, and salvol is present, it means they contain O antigen, that is somatic antigen. Next we have is the species. प्रोटीज की दो स्पीसीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस और बहुत ज़्यादा केसेस में हमें मिलती हैं. दैट इज़ प्रोटीज वल्गैरिस एंड प्रोटीज मिराबिलिस. नेक्स्ट इज दे आर प्लियोमॉर्फिक. जो प्रोटीज है वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, और जो प्रोटीज की नेमिंग है वो भी एक ग्रीक गॉड के नेम पर ही है. जिनका नेम था प्रोटियस, और वो गॉड जो थे दे कैन एज्यूम एनी शेप. वो गॉड कोई भी शेप ले लेते थे. दैट्स वाई प्रोटीज भी कोई भी शेप ले लेता है, इसलिए इसका नाम उन गॉड पे रखा गया है. Next thing we will discuss about its cultural characteristics. So they are aerobic, facultative anaerobes. It means that they can grow in presence of oxygen as well as they can grow in absence of oxygen. Next is, and one thing more is they contain fimbriae. Okay, the fimbriae will help in the attachment of the Proteus. Okay, next is the culture media that we can use for the growth of Proteus. So we can use mostly ordinary medias are used for the growth of culture media, और उन culture media में से हमें एक characteristic जो है वो है putrefactive odor, that is fishy odor हमें देखने को मिलता है. जो इसमें हम culture media यूज़ करते हैं वो है न्यूट्रेंट अगार, ब्लड अगार. और ब्लड अगार पे जब हम प्रोटीज की ग्रोथ करवाते हैं या न्यूट्रेंट अगार पे जब हम प्रोटीज की ग्रोथ करवाते हैं तो वहाँ पे हमें एक करेक्टरिस्टिक मिलती है, दैट इज स्वामिंग. स्वामिंग का मतलब होता है कि जो भी बैक्टीरिया है वो जब कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मूव करने लग जाए, दिस इज कॉल्ड स्वामिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड स्वामिंग. एंड डाइन्स फिनोमिना इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्वामिंग. वी विल डिस्कस ahead about the Dine's phenomena. First we will discuss this H antigen and O antigen. So H antigen is taken from the word Hoch, which means film of breath, and O antigen is taken from the word ohne Hoch, which means without film breath. Next we are going to discuss about the Dine's phenomena. So the Dine's phenomena states that, for example, अगर हम कोई भी पेट्री प्लेट लेते हैं या कल्चर मीडिया लेते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम दो डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रोटीज की दो डिफरेंट स्ट्रेन्स को इनोकुलेट कर दिया. फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेन हमने इनोकुलेट कर दी मिराबिलिस और दूसरी स्ट्रेन हमने यहाँ पे इनोकुलेट कर दी वल्गैरिस. तो दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं पर दोनों ही प्रोटीज की स्ट्रेन्स हैं. तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये दो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे हमने स्ट्रेन इनोकुलेट की हैं, दे विल रिमेन सेपरेटेड विद अ फ्यूरो. ओके, यहाँ पे एक डिमार्केशन की लाइन आ जाएगी. ये क्या करेंगे, जो जितने भी यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो मूव करना शुरू करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. ओके,
पर ये अलग अलग रहेंगे। देयर विल बी अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, एक हमें यहाँ पे अच्छी खासी लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखेगी। इन केस ऑफ सेपरेटेड स्ट्रेन्स, अगर दोनों स्ट्रेन्स आइडेंटिकल होंगी, अगर दोनों स्ट्रेन्स आइडेंटिकल हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे इनोकुलेट की हैं दो अलग अलग स्ट्रेन्स, वो क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल दोनों ही वल्गैरिस हैं, लेकिन हमें नहीं पता, पर दोनों ही क्या है, वल्गैरिस हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं आएगा। दे विल फॉर्म द कंसेंट्रिक सर्कल इन दिस फॉर्म। ओके, दिस इज द डाइन्स फिनोमेना। नेक्स्ट वी हैव द पैथोजेनेसिस ऑफ प्रोटियस. So the proteus are present as the saprophytes. They are commensals of skin and intestine. The proteus are responsible for mostly for the opportunistic infection, that is UTI, wound infection and septicemia. The one important thing that proteus causes is the struvite stones in the bladder. They form renal stones, जिसे हम हिंदी में पथरी बोलते हैं. ओके, ये अब कैसे बनता है? प्रोटियस कैन प्रोड्यूस एंजाइम दैट इज कॉल्ड यूरिएज. ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है. जब यूरिया जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से यूरिन जो है वो एल्कलाइन हो जाता है. नॉर्मली जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो प्रोटियस स्पीसीज है वो क्या करती है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो एल्कलीन हो जाएगा. एल्कलीन होने के बाद, यूरिन एल्कलीन जब हो जाएगा तो प्रोटियस आराम से सर्वाइव कर सकता है वहाँ पे, एंड दे विल प्रेसिपिटेट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उसके बाद वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करने लग जाएंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और वहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाता है फॉस्फेट का. दिस डिपोजिशन ऑफ फॉस्फेट विल लेड टू द रेनल स्टोन, और इस डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे रेनल स्टोन्स बनने लग जाते हैं. दैट आर कॉल्ड स्ट्रूवाइट स्टोन इन ब्लैडर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रोटियस. नेक्स्ट वी हैव इज द लैब डायग्नोसिस ऑफ प्रोटियस. सो प्रोटियस की लैब डायग्नोसिस में आता है प्लियोमॉर्फिज्म. फर्स्ट, प्रोटियस जो है वो हाईली प्लियोमॉर्फिक है, तो वो बेसिलरी एंड फिलामेंटस फॉर्म्स को पोजेस करता है. नेक्स्ट इसके लैब डायग्नोसिस में आ जाएगा ओडोर, दैट इज सेमिनल ओडोर, और फिशी ओडोर और प्यूट्रीफैक्टिव ओडोर. नेक्स्ट थिंग इज स्वामिंग, हम स्वामिंग देख सकते हैं. और डाइन्स फिनोमिना, डाइन्स फिनोमिना में क्या होगा, अगर नैरो लाइन ऑफ डिमार्केशन आता है, अगर वहाँ पे डिमार्केशन दिख रहा है, देन जो स्ट्रेन्स हैं वो अलग अलग हैं. अगर वहाँ पे कोई भी डिमार्केशन नहीं है तो स्ट्रेन्स जो हैं वो सेम है. नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव द बायोकेमिकल रिएक्शंस. सो द प्रोटियस इज यूरिएज पॉजिटिव, सिट्रेट पॉजिटिव, वीआर पॉजिटिव, वीपी नेगेटिव. इंडोल के लिए जो वल्गैरिस है, प्रोटियस वल्गैरिस जो है वो इंडोल पॉजिटिव है, पर प्रोटियस मिराबिलिस जो है वो इंडोल नेगेटिव है. नेक्स्ट इज ऑर्निथीन डीकार्बोक्सिलेज टेस्ट. तो ये जो प्रोटियस मिराबिलिस है उसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन प्रोटियस वल्गैरिस के लिए ओसीटी नेगेटिव है, ओडीटी. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो. थैंक यू.